How are you all? I think all of you are fine. In the last video lecture of lesson number 3, Was It a Dream? You have learned the story about Rita and her brother Frank who were picnicking in the woods. I think all my students have understood the chapter thoroughly. आपको सबको समझ में आ गया था ना लेसन अच्छी तरह से? Yes, all the students have understood the chapter very nicely. So now, let's revise the lesson with some simple questions. First question, what did Rita see? So many students are ready with the answer. Good. Rita saw a small group of fish. Rita ने क्या देखा? Rita saw a small group of fish. Very good. Next one. What were they doing? ये क्या कर रहे थे? What were they doing? They were speaking very eagerly to one another. क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब one boy Frank is sitting and he want to catch the fish और एक छोटा fish वो उसे बैट को खाने वाला था. So they were eagerly speaking to one another. Third question, what was there inside the worm? Come on students. Yes, very nice. The response is very good. There was a hook inside the worm. There was a hook, like this hook was there, and inside that the bat was hung. So here hook is there and here bat is there. So there was a hook inside the worm. Worm is here and inside that the hook is there so that when the fish come to eat the worm, it will get caught in the hook. Here hook is there, here it will get caught. So there was a hook inside the worm. Very nice response, good students. Now let's check your knowledge. Now these sentences, some mistakes are there. You have to correct the sentences. So all the students are ready? Okay. Correct these sentences. For a few moments, there was some sound in the water. Here it is there. For the few moments, there was some sound in the water. Where is the mistake? कहाँ पे है भूल? Yes. Right answer. For a few moments, there was some silence. वहाँ पे एकदम सन्नाटा था क्योंकि वो small fish उसके मम्मी ने समझाया था कि don't go for eating the bait. So थोड़ी देर वो रुक गया. So that time silence was there in the water. Second, the line was so light that the Frank could hardly pull it. What is the second question? The line was so light that the Frank could easily pull it. Correct or wrong? Yes, it is wrong. The line was so heavy that Frank could hardly put it. वो इतना heavy हो गया था because वो छोटा सा fish और उसके जो सारे help करने वाले थे mother and the other fishes सारे उसके tail को पकड़ के उसे खींच रहे थे. So the line was so heavy. Next one, the sight. This sight, the sound was so funny that Rita started laughing heartily. तो इसमें लिखा है sound. It is right or wrong? Wrong. Yes. तो the sight, ये दृश्य was so funny that Rita started laughing heartily. Again है समझ में? Yes. All the students have understood the lesson nicely and everyone has given correct answer. So now we are ready to move on to the next exercise story you have understood. You are clear with the story. So let's start our work in the FN book. आपको कहाँ start करना है? FN book के अंदर. और आपको पता ही है कि what you have to use?
ब्लैक पेन और ब्लू पेन वो आपको साइड में ले लेनी है। I believe all my students have completed their second chapter celebrating Bihu and poem number 1 Flower on the Road in their FN book. Correct no students? हाँ वेरी गुड नाइस, अच्छी बात है, सब ने कर लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर वॉज इट अ ड्रीम इन योर FN बुक। रेडी? चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू देयर दैट यू सी। फर्स्ट विद द ब्लैक पेन यू हैव टू राइट लेसन नंबर 3 इन द मार्जिन। क्या लिखना है? ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है लेसन नंबर 3 इन द मार्जिन। फिर फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नेम ऑफ द लेसन, वॉज इट अ ड्रीम इन द फर्स्ट लाइन, वो भी ब्लैक पेन से होगा। देन इन द सेकेंड लाइन वी विल राइट न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स लिखेंगे सेकेंड लाइन में एंड दैट ऑल्सो विथ ब्लैक पेन। Now black pen work is over. Now take blue pen in your hand and we can start with our work. So first spelling is against, A-G-A-I-N-S-T, against. What is the spelling? A-G-A-I-N-S-T. आपको ये मेरे साथ रिपीट करते जाना है। Yes, आपको याद ही है, वेरी गुड। सेकेंड swiftly, SWIFTLY, स्विफ्टली यानी बहुत स्पीड में, SWIFTLY, स्विफ्टली। थर्ड स्पेलिंग ड्राउजी, DROWSY, ड्राउजी मतलब नींद में होना, फीलिंग स्लीपी। फोर्थ स्पेलिंग ईगरली, EAGERLY, ईगरली मीन्स बहुत उत्साह और इंटरेस्ट के साथ, ईगरली। रिपीट आफ्टर मी, EAGERLY, ईगरली। यस, गुड। देन द फिफ्थ स्पेलिंग एस्केप, EXCAPE यानी कहीं से भाग जाना, टू रन अवे, EXCAPE, वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं, गुड। सिक्स स्पेलिंग इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। सेवन स्पेलिंग स्प्लेंडिड, SPLENDID means very good, splendid, SPLENDID, splendid. Keep it up students, सारे आंसर बोल रहे हैं, all are repeating the words. Exclaimed, 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 exclaimed यानी जोर से रिस्पॉन्स देना। सराउंडेड, SURROUNDED यानी पूरी तरह से उसको घेर लेना, सराउंडेड, SURROUNDED, सराउंडेड। देन द नेक्स्ट स्पेलिंग इज swallow, 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 swallow मतलब निगल जाना, चबाना नहीं, डायरेक्टली निगल जाना, दैट इज कॉल्ड swallow. So students ready? Done? Yes, all the students are completed. So now we can move on to the next part, that is meanings. तो here the same method you have to use. सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेनी है एंड यू हैव टू राइट द हेडिंग। पहले आप वन लाइन स्किप कर दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, देन यू कैन राइट द हेडिंग विद द ब्लैक पेन। मीनिंग्स ब्लैक पेन से लिख लेना है। क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्ट वन विल गो विथ ब्लैक पेन ओनली। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्प्लेंडिड मीन्स वेरी गुड। सेकेंड स्पेलिंग इज
हार्टीली, यानी पूरे मन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, दैट इज कॉल्ड हार्टीली, मीन्स जॉयफुली। हार्टीली मीन्स जॉयफुली। थर्ड स्पेलिंग थंप, क्या मतलब होता है? टू फॉल ऑन द ग्राउंड विथ अ डल साउंड, जमीन पे धड़ाम से गिरना मगर ज़्यादा चोट नहीं लगना, जैसे फ्रैंक गिर गया था झरना के किनारे, लाइक दैट। थंप मीन्स टू फॉल ऑन द ग्राउंड विथ अ डल साउंड। आप ये रिपीट भी कर सकते हैं, सो यू कैन लर्न बेटर। फोर्थ स्पेलिंग स्विफ्टली, मूविंग वेरी क्विकली। स्विफ्टली का मतलब बहुत जल्दी जाना, मूविंग वेरी क्विकली। फिफ्थ स्पेलिंग ड्राउजी मीन्स स्लीपी, नींद में होना, सो ड्राउजी मीन्स स्लीपी। सिक्स स्पेलिंग बेट, बेट मीन्स फूड यूज टू ट्रैप फिश। बेट का मतलब क्या होता है? खाना जिसे मछली को फंसाने के लिए काम में आता है, तो दैट इज बेट मीन्स फूड यूज टू ट्रैप फिश। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ गए अच्छे से? यस, तो मीनिंग्स यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हियर ऑल्सो लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए, एंड राइट द हेडिंग विद द ब्लैक पेन। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो हियर फर्स्ट ओनली आई हैव टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर्स कि यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मगर वो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इट इज़ नॉट देयर कि मैं जो बता रही हूँ सेम सेंटेंस यू हैव टू राइट, यू कैन राइट एनी सेंटेंस। फर्स्ट वन इज देयर कैच। व्हाट इज द वर्ड? कैच। तो आप क्या सेंटेंस लिखेंगे इसका? आई वॉन्टेड टू कैच अ बटरफ्लाई बट इट फ्लू अवे। ऐसा सेंटेंस बन सकता है? बन सकता है ना बच्चों? यस, आई वॉन्टेड टू कैच अ बटरफ्लाई बट इट फ्लू अवे। देन द सेकेंड वन, नहीं इसका हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। एवरी टाइम, आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। एवरी टाइम टॉम वॉन्ट्स टू कैच जेरी बट ही एस्केप्स। तो व्हाट इज देयर? एवरी टाइम टॉम एंड जेरी कार्टून शो तो आप देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है? हर बार टॉम उसको पकड़ने आता है पर जेरी भाग जाता है। सो लाइक दैट वी से मेक द सेंटेंस एवरी टाइम टॉम वॉन्ट्स टू कैच जेरी बट इट escapes. Correct, no? Yes. So now the second one, drowsy means meaning तो आपको पता ही है, नींद में होना। So like this sentence we can write, after doing lesson for an hour I felt drowsy. After doing lesson for an hour I felt drowsy. एक ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं। The second sentence can go like this, because of long journey I was tired and felt drowsy. ज़्यादा मुसाफरी करने की वजह से मैं थक गया था and I felt drowsy. Again, because of long journey I was tired and felt drowsy. Now we will move on to the third one, clear. So simple word, clear. The water of the river was clear. सिंपल सेंटेंस है ना? ओके, द वाटर ऑफ द रिवर वॉज क्लियर। दूसरा सेंटेंस हम ऐसे लिखेंगे, दिस टॉपिक इज क्लियर टू मी। दिस टॉपिक इज क्लियर टू मी। आ गया समझ में? चलो, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। स्टिल फ्यू आर रिमेनिंग। फोर्थ वन इज देयर, क्विकली। व्हाट इज द वर्ड? क्विकली। तो अब क्विकली का क्या सेंटेंस बनेगा? यस, द टाइगर एट द प्रे क्विकली। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, दैट इज अप टू यू। द टाइगर एट द प्रे क्विकली। प्रे का मतलब PREY, मतलब शिकार। स्पेलिंग क्या होगी? PREY। द टाइगर एट द प्रे क्विकली। Next sentence we can write like this, I can climb the hill quickly.
I can climb the hill quickly. Fifth sentence, silence. Easy है ना? Yes. तो sentence we can write like this. There was silence in the class when the teacher entered. There was silence in the class when the teacher entered. Second sentence we can write like this. We should maintain silence in the class. We should maintain silence in the library also you can write. So the sentence will go like this. We should maintain silence in the library. Then the sixth one, excited. Yes, all the students are ready with the answers, sentences. Very good. We were very excited about the project when the teacher asked us to present the project. So all the students were very excited about the project. Second sentence we can write like this. I was excited to meet my friend after a long time. I was excited to meet my friend after a long time. So like this आप अपना sentence लिख सकते हैं. Sentence can differ, meaning नहीं change होना चाहिए. Clear? चलो. Now we'll move on to the next part, that is answer in short. उसके लिए क्या करना होगा? First you will take the black pen in your hand और एक लाइन छोड़ के आप वहाँ पे heading लिख लीजिए answer in short. और हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन भी हम ब्लैक पेन से ही लिखेंगे. तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? व्हाट वेर रीटा एंड फ्रैंक डूइंग बिसाइड द स्ट्रीम. रीटा और फ्रैंक झरने के बाजू में क्या कर रहे थे? वेरी नाइस. ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी विद द आंसर. गुड. सो इट विल कम. रीटा वॉज गैदरिंग फ्लावर्स इन द वुड्स. रीटा क्या कर रही थी? वो जो जंगल जैसा एरिया था, जंगल नहीं था मगर पूरा एरिया ट्री से कवर्ड अप था. तो सी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स इन द वुड्स. वाइल हर ब्रदर फ्रैंक सैट बाय द स्ट्रीम विथ हिज फिशिंग रॉड. उसे मछली पकड़नी थी इसलिए वो झरने के किनारे बैठ गया सो दैट ही कुड कैच द फिश विथ हिज फिशिंग रॉड. अगेन वी विल सी द आंसर. रीटा वॉज गैदरिंग flowers in the woods, while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod to catch the fish. Clear? Now फिर से ब्लैक पेन हाथ में ले लेनी है. Then we'll write the question. Why did Rita not call out to the little fish? रीटा ने फिश को क्यों नहीं बुलाया? What did she want to say? वो क्या कहना चाहती थी? तो रीटा उसे वार्निंग देना चाहती थी कि जो उसके मम्मी कह रहे हैं दैट इज़ करेक्ट. देखते हैं. यस. रीटा वांटेड टू कॉल आउट टू द लिटिल फिश एंड टेल हिम दैट हिज मदर वाज राइट. कि उसकी मम्मी जो समझा रहे हैं कि दैट इज़ करेक्ट ओनली कि उस फिशिंग रॉड के नीचे जो बेट है वो एक्चुअली वो जाल है और उसके ऊपर हुक लगा हुआ है. अगर वो बेट को खाने गया तो वो उसमें फंस जाएगा एंड फाइनली ही विल डाई. बट शी वॉज नॉट श्योर इफ़ ही वुड बी एबल टू हियर हिम. और वो ये क्यों नहीं कह पाई? क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वो कहेगी तो उसकी बात वो फिश समझ पाएंगे, वो सुन पाएंगे कि नहीं. दैट्स वाई शी वॉज नॉट एबल टू से टेल टू द फिश. अगेन विल सी द आंसर. Why did Rita not call out to the little fish? What did she want to say? तो रीटा उसे वार्निंग देना चाहती थी मगर नहीं कह पाई क्योंकि वो समझ रही थी कि वो फिश उसकी बात नहीं सुन पाएंगे. रीटा wanted to call out to the little fish and tell him that his mother was correct, but she was not sure if he would be able to hear her. Correct? चलो. Now third one. Why was the mother fish worried? Mother fish क्यों चिंतित थी? Yes, see all my students are ready with the answer. चलो
we'll see. The mother fish was worried because the little fish had tried to swallow the bait and was caught in the hook. उसके मना करने के बावजूद भी वो लिटिल फिश उसने वो बेट को निगल लिया था और वो हुक में फंस गया था और वो मर न जाए इसकी वजह से उसकी मम्मी को बहुत टेंशन हो गया था. शी वॉज वेरी मच वरीड. तो वाई वॉज मदर फिश वरीड? मदर फिश वॉज वरीड बिकॉज द लिटिल फिश हैड ट्राइड टू swallow द बेट एंड वॉज caught इन द हुक. आया समझ में? यस. सो नाउ वी आर ready to do with the next exercise, that is answer in long. तो we'll see next part, that is answer in short. चलो आगे बढ़ते हैं with answer in short. We have completed. Now we'll move on to answer in long. Here the same method you have to apply. सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेनी हाथ में, एक लाइन छोड़नी है and then you will write the heading. एक लाइन छोड़ के लिखना है. हेडिंग लिख लीजिए सबसे पहले, आंसर इन लॉन्ग विद द ब्लैक पेन. उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस. हाउ कुड रीटा सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम? व्हाट डिड शी सी देयर? तो वो कैसे देख पाए झरने के एकदम नीचे तलवे तक, और उसने वहाँ क्या देखा? 2 क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं. अरे वाह, ऑल माई स्टूडेंट्स आर नोइंग द आंसर. चलो तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं. रीटा ले डाउन बाय द स्ट्रीम एंड कुड सी एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको पूरा लिखना है. रीटा ले डाउन बाय द स्ट्रीम एंड कुड, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है. सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. पूरा आंसर ऐसे आएगा. रीटा ले डाउन बाय द स्ट्रीम एंड कुड सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. पूरा आंसर आपको लिखना है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आपको कंटिन्यू करना है. फिर से बोल रही हूँ. रीटा ले डाउन बाय द स्ट्रीम एंड कुड सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. पूरा यहाँ तक आपको लिखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा. सी सॉ ए स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट. उसने सारे मछलियों को एक साथ इकट्ठा तैरते हुए देखा. देन सी हर्ड लिटिल वॉइसेस कमिंग अप फ्रॉम द रिवर. फिर उसने अंदर से नीचे से आवाज़ आती हुई सुनी पानी में से. तो अगेन विल रिपीट द फुल आंसर. रीटा ले डाउन बाय द स्ट्रीम एंड कुड सी एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. सी सॉ ए स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट. देन सी हर्ड लिटिल वॉइसेस कमिंग अप फ्रॉम द water. This is the answer. Now again with the black pen we'll write question number 2. What did the largest fish say to the little fish? Largest fish ने अपने बच्चे little fish को क्या कहा? सबको आता है, but the answer should be in English, correct? Yes, तो answer you have to give in English. Responses in English should be there. Yes, my other students are also ready. Come on, give the answer. Very good. Answer is absolutely right. The answer is, when the largest fish saw at the end of the fishing line, it knew that it was a trap to catch the fish. She warned the little fish that the worm was the bait and inside it was a hook and could catch them and lift them out of the water if they tried to swallow or bite it. तो उसकी माँ ने उसे पूरा समझाया कि what is there actually at the end of the fishing rod. फिशिंग रॉड के अंदर क्या है कि वहाँ पे बेट लटका हुआ है, मगर एक्चुअली उसके नीचे उसके पीछे हुक है, और जैसे ही कोई भी फिश उसको खाने जाएगी तो वो उस हुक में फंस जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू कम आउट, और फाइनली ही हैज़ टू डाई आउट. उसने अपने जीवन में पूरे कितनी बार ऐसा देखा था. सो विथ हर एक्सपीरियंस शी इज़ एक्सप्लेनिंग हर चाइल्ड अबाउट द फुल सिचुएशन. फिर से देख लेते हैं.
When the largest fish saw the end of the fishing line, it knew that it was a trap to catch the fish. कि एक जाल बिछा है फिश को फंसाने के लिए. She warned the little fish that the worm was the bait. जो worm था एक्चुअली एक bait था, and inside it was a hook and would catch them and lift them out of the water if they tried to swallow or bite it. Clear? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. What is the next question? What made Rita laugh heartily? रीटा जोर से खिलखिला के क्यों हंसने लगी? यस, आपको भी सिचुएशन याद आ गया है ना? यस, तो आप सब भी हंस रहे हो. तो बात ही ऐसी थी कि एक्चुअली लास्ट में कैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था? यस, इट वॉज टोटली फनी. तो इसलिए रीटा को वो पूरा देख के उसे भी हंसी आ गई थी. सो व्हाट हैपेंड? रीटा लाफ्ड हार्टिली व्हेन द फिश रॉड फ्लू आउट ऑफ फ्रैंक्स हैंड. उसके हाथ से छिटक के वो फिशिंग रॉड दूर जाके गिर गया. एंड ही फेल विथ ए थंब ऑन द ग्रास. और वो फ्रैंक भी धड़ाम से जमीन पे घास पे जाके गिर गया. वाइल द लिटल फिश जम्प्ड बैक इनटू द वाटर. और जो फिश उसमें फंसी हुई थी, छोटा सा बच्चा, दैट फ्लू अवे फ्रॉम द फिशिंग रॉड. द साइट वॉज सो फनी दैट रीटा कुड नॉट हेल्प लाफिंग. तो दृश्य इतना हंसाने वाला था, फनी था कि उसको हंसी आ गई. सो वन टाइम मोर we'll repeat the answer. What is the question? First we'll see. What made Rita laugh heartily? What made Rita laugh heartily? So answer is like this. Rita laughed heartily when the fishing rod flew out of Frank's hand and he fell with a thump on the grass. While the little fish jumped back into the water, the sight was so funny that Rita could not help laughing. करेक्ट नो? आप सब बच्चों के चेहरे पे भी हंसी आ गई. आपको स्टोरी पूरी तरह याद आ गई है. दैट्स वाई. यस, सो दिस इज द आंसर. हियर वी हैव कंप्लीटेड द वर्कशीट एक्सरसाइज. वर्ड मीनिंग, दिस न्यू वर्ड्स, मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेस, आंसर इन शॉर्ट एंड आंसर इन लॉन्ग. ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है. तो नाउ आवर दिस इन FN बुक आवर राइटिंग पार्ट इज कंप्लीट. तो अब हम कहाँ लिखेंगे? विच पार्ट इज रिमेनिंग? यस, द टेक्सचुअल पार्ट. सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्सचुअल बुक, पेज नंबर 25 ऑफ लेसन नंबर 3. क्या खोलना है आपको? यस, द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 3, पेज नंबर 25. तो now we'll open that one and see कि what is there on that one. Yes, so here सभी बच्चों ने खोल ली अपनी टेक्स्ट बुक. कौन सा पेज खोलना है? पेज नंबर 25. और आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक में आपको पेंसिल से लिखना है. तो टेक्स्ट बुक में आप पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में. चलो स्टार्ट करते हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर. MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो आपको 3 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर देना है. फर्स्ट वन, फ्रैंक डिड नॉट प्ले विथ रीटा बिकॉज. फ्रैंक रीटा के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता था? यस, वेरी गुड, सब ने करेक्ट आंसर दिया. ही वॉन्टेड टू कैच सम फिश. क्योंकि उसे फिश पकड़नी थी, दैट्स वाई. अगेन, फ्रैंक डिड नॉट प्ले with Rita because he wanted to catch some fish. यहाँ पे आपको बी के आगे टिक लगा देना है. चलो नाउ द सेकंड क्वेश्चन. द लार्जेस्ट फिश वॉज ट्राइंग टू. लार्जेस्ट फिश क्या समझाना चाहती थी? यस, द आंसर इज ए, वॉर्न द लिटल फिश अबाउट द डेंजर. कि जो खतरा है उसके बारे में वो अपने बच्चे को, लिटल फिश को
आगाह करना चाहती थी. Yes, the answer is like this. The largest fish was trying to warn the little fish about the danger. तो ए के आगे आपको टिक लगाना है with the use of your pencil. Now the third one. The little fish escaped when. Little fish कैसे छूट के निकल के वहाँ से भाग पाया? Very good. Right answer. The fishing rod flew off the Frank's hand. जब फ्रैंक के हैंड से फिशिंग रॉड छटक के निकल गया था, छूट गया, that time. Again, the little fish escaped when the fishing rod flew off Frank's hand. Done no? Chalo. Now we'll move on to the fourth one. Fourth one, what is the question? Yes. So fourth one, the question is like this. Rita was pleased at the end because. Rita अंत में बहुत खुश थी. Why? What is the reason? The reason is this. The little fish had escaped. उसके दिल में उसके लिए बहुत भावना थी, उसे बचाना चाहती थी और एक्चुअली लास्ट में वो बच भी गया. That's why she was very happy. तो रीटा was pleased at the end because the little fish had escaped. Correct students? सबने ऑप्शन टिक कर लिए? Yes, very good. So all the students have done the exercise very nicely. So in this lecture we have completed the textual exercise. Now in the next video we will see the grammar exercise of the